Hi dear students, let's see this question that came in KVPY 2019 SX Part 2 Physics paper. The question is fairly simple based on Newton's law of cooling. Like most of the students would have done this because they would have done these type of questions many a times in their JEE preparation. So let's see what's happening over here. Basically, this is a simple circuit which carries a constant current. So whatever heat is being dissipated in this resistor is used to heat a water which is kept in a bucket. Okay, and we have been given these four graphs which represent temperature versus time of the water kept in the bucket. So we have to choose the correct graph. If you have studied at the slightly mains level as well, then you will realize that this is the correct graph. Although I will give you two methods to justify my answer. So first let us think theoretically, why will this be answer? Okay, so now suppose this water is kept in bucket, so we can safely assume that this water would have been at the room temperature. Let us say the surrounding temperature is Ts, and the water temperature we can also say, since it was initially kept in bucket, so we can say that it will be at the room temperature. So let's say it's at Ts only. Okay, so now what is the rate of heat loss? By Newton's law of cooling, what is the rate of fall of temperature? So it is nothing but minus B into T minus Ts. This is the rate at which temperature falls. But Newton's law of cooling says that. Okay, so we can say that initially there will be no fall of temperature. Okay, or we can say that initially there will be no loss of heat also, because whatever heat it will be gaining due to surrounding, it will be losing also to the surrounding the same heat. And as of now there is no heat being supplied from the resistor. Okay, so we can, if you multiply this by ms, so you can multiply this by ms, so you can say that this this is the rate at which it will be losing heat, but since it will also be gaining heat because T is also Ts, so net rate of heat loss is 0 because ms dt by dt will be 0. I hope you have understood. Since its temperature is Ts, initially Ts, so net rate of heat loss will be 0 initially, net rate. Okay, now you start, now this resistor, let us say, supplies the power at rate of P. Now definitely this P is constant because whatever current flowing in this circuit is constant. So I square R1, P is nothing but I square R1. So this P is constant है ना, ये जो power है, resistor जो power दे रहा है, that is constant power. So this P is being given to this water. Okay, now because of this power we can say that its temperature will start rising. Okay, initially the rise of temperature will be very large because dt by dt will be large. Okay, because uh, जो temperature difference था surrounding के साथ इसका, that was 0. So net rate of heat exchange between surrounding and water was 0. But because of this power, its temperature will start rising at a very high rate. Now as temperature will rise, the difference will be created, surrounding और इसके बीच में temperature difference create हो जाएगा. Hence it will start losing more heat to surrounding than it gets from the surrounding. Okay, but still it is getting lot of heat from the resistor. तो cumulative effect क्या होगा, ध्यान से सोचो. It's temperature, like इसका जो temperature difference है surrounding के साथ, let us say 1 degree Celsius हो चुका है, so it is losing heat to the surrounding which is proportional to 1 degree Celsius, but it is gaining lot of heat. So its still temperature is rising, but at a lesser rate. Why? Because now it is losing more heat to surrounding than it is getting from surrounding. ठीक है, so its temperature is rising, उसका temperature बढ़ रहा है, but at a lesser rate. ठीक है, तो अब टेम्परेचर और बढ़ा. लेट अस से जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो बढ़ के 5 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक है, सराउंडिंग और वाटर का. तो अब इट इज लूजिंग, लाइक ये जो डिफरेंस है ज्यादा बढ़ चुका है. मतलब ये वाला जो डिफरेंस है सराउंडिंग और वाटर के टेम्परेचर, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो चुका है. Hence it is losing much more heat to surrounding than it is getting, but still it is getting lot of heat from the resistor. Therefore we can say that its still temperature will rise, but even at a lesser rate. सोचो क्या हो रहा है, टेम्परेचर अभी भी लेस रेट से बढ़ेगा. ठीक है, सो फाइनली, सो व्हाट डू यू सी, व्हाट पैटर्न डू यू सी, कि धीरे धीरे करते करते ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. बट जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर कम होता जा रहा है. ठीक है, मतलब dt बाई dt की वैल्यू कम होती जा रही है. ठीक है, हेंस टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप
will become less and less with time. Finally there will be a moment जब इसका वाटर का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना डिफरेंस इतना हो चुका होगा सच दैट जो भी हीट इस रजिस्टर से मिल रही है वो पूरी डिसिपेट होती जा रही है, ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन से दैट टेम्परेचर टाइम ग्राफ वुड हैव बिकम ऑलमोस्ट horizontal. So you can say that this type of pattern we are going to get. Okay, so which is what we get in option C, right? This is the theoretical explanation of this. Now if you want a mathematical explanation then we can also give you mathematical explanation. So let us say कि ये हमारा water है, ठीक है. इसको रजिस्टर से जो P के रेट से हीट मिल रही है, जो मतलब आई एम सेइंग P इज नथिंग बट I स्क्वायर R1, तो P के रेट से हीट मिल रही है, ठीक है. एंड इट इज लूजिंग हीट विच मतलब ये जो हीट लूज कर रहा है वो एक कांस्टेंट T माइनस टी एस इस रेट से मतलब इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है. यहाँ पे तुम ms भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट डजेंट मैटर. तो इस रेट से ये हीट लूज कर रहा है, कैन वी से दैट. सो दिस विल बी इज इक्वल्स टू ms dt by dt, ठीक है. P के रेट से हीट मिली एंड इस रेट से इसने हीट लूज कर दी, जहां पे T इज द इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर एंड Ts इज द सराउंडिंग टेम्परेचर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो इस रेट से ये हीट लूज कर रहा है सराउंडिंग को, नेट लॉस है, और इस रेट से इसको हीट मिल रही है, ठीक है. इस रेट से इसको हीट मिल रही है. सो वी कैन से दैट नेट रेट से जो उसको हीट मिली वो ये है. आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है. अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो P है, ठीक है, और ये मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, P माइनस मतलब ये माइनस, और ये Ts सब कुछ कांस्टेंट है ना, B Ts और Ms कांस्टेंट है. तो इसको मैंने B Ts Ms ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे माइनस B Ms Ts, राइट. ये बचा Ts नहीं सॉरी T, ठीक है. ये बचा माइनस B Ms T, हाँ. दैट शुड बी इक्वल्स टू Ms dt by dt, ठीक है. अब ये कांस्टेंट है, ठीक है. इसको अपन कुछ लैम्डा वन कह सकते हैं, उसको लैम्डा टू कह सकते हैं, ठीक है. तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू टेम्परेचर दैट शुड बी इक्वल्स टू यहाँ पे इसको ms को भी इधर ले आते हैं, ठीक है. तो ms को इनफैक्ट ms से डिवाइड करके लैम्डा वन लैम्डा टू कह देते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये पूरा ms को इधर ले आओ, ठीक है. p प्लस, तो क्या हो जाएगा P प्लस बी टी एस एम एस अपॉन एम एस, ठीक है, माइनस बी टी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी टी, राइट. तो अब इसको लैम्डा वन कहते हैं, उसको बी ही रहने देते हैं. तो लैम्डा वन माइनस बी टी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बस. नाउ वी कैन इंटीग्रेट. तो डी टी अपॉन लैम्डा वन माइनस बी टी इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है. So you can integrate. So at time 0 we can say that temperature was that equals to surrounding temperature, ठीक है, बोल सकते हैं, या कुछ भी T1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. And at time t let's say temperature has become T. So if you integrate this it will be, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ln of lambda 1 minus bt, ठीक है. And the limits will be from T, और यहाँ पे माइनस बी भी आएगा अपॉन माइनस बी, ठीक है, और लिमिट जाएंगे ts से t तक. दिस विल बी इज इक्वल्स टू t, राइट. माइनस बी को यू कैन टेक ऑन द राइट साइड, और यहाँ पे अगर लिमिट्स डाली जाए तो ln ऑफ लैम्डा वन माइनस बी टी अपॉन लैम्डा वन माइनस बी टी एस, ठीक है. ln a माइनस ln b क्या होता है, ln ऑफ a बाई b. तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली है, ठीक है. ln a माइनस ln, जब t रखेंगे तो ln ऑफ लैम्डा वन माइनस बी टी आएगा, फिर माइनस ln ऑफ लैम्डा वन माइनस बी टी एस आएगा, ठीक है. तो ln a माइनस ln b में ln ऑफ a बाई b कर सकते हैं ऐसे. तो यहाँ से तुम देखो क्या आ रहा है, लैम्डा वन माइनस बी टी इज इक्वल्स टू लैम, ये e की पावर इधर जाएगा, और फिर ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये भी राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. तो व्हाट वी विल गेट, ऐसा कुछ आएगा क्या, चेक करो. तो ये e की पावर इस तरफ आएगा और ये वाली डिनोमिनेटर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है. तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही है, टेम्परेचर जो हमारा आ रहा है ये राइट साइड में ले जाते हैं और ये पूरा लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है, और b से डिवाइड कर देते हैं. तो लैम्डा वन माइनस मतलब वन अपॉन बी भी आएगा, वन अपॉन बी, ठीक है. एंड लैम्डा वन माइनस बी टी एस
into e की पावर माइनस bt. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. बस अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि बेसिकली ये कैसा ग्राफ आएगा. जैसे इसको टाइम जीरो कर देते हैं तो टाइम जीरो करते ही ये वैल्यू वन बन जाएगी. तो यहाँ से लैम्डा वन और लैम्डा वन कैंसिल और बी भी कैंसिल, तो टी की वैल्यू टी एस आ गई है ना, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर पे ऐसे कुछ वैल्यू आ गई. और टी को अगर इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, इन्फिनिटी कर दें तो ये चीज़ जीरो बन जाएगी. ठीक है, ये चीज़ क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी. तो बेसिकली ये कांस्टेंट सी वैल्यू पे अप्रोच कर रहा होगा. ठीक है, वो एक्चुअली सराउंडिंग टेम्परेचर ही होगा, लैम्डा वन बाई बी की वैल्यू का सराउंडिंग टेम्परेचर ही होगी यहाँ पे. ठीक है, तो उस पर अप्रोच कर रहा होगा. ठीक, सॉरी सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं होगा इस केस के अंदर, सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा. सराउंडिंग टेम्परेचर पे तो वो इनिशियली था, ये इन्फिनिटी पे सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, किसी लैम्डा वन बाई बी के वैल्यू पे अप्रोच कर रहा होगा. ठीक है, और धीरे धीरे करते करते इसका जो स्लोप है, मतलब जैसे कि अगर तुम इस ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसका जो स्लोप है कम होता जाएगा. तुम यहाँ से देख भी सकते हो, जैसे अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे वापस, तो तुम्हारा इनफैक्ट यहीं से तुम देख लो कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप की वैल्यू कम होती जा रही है. यू कैन सी दैट कि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है. ठीक है, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है. यहीं से दिख रहा है तुम्हें. ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये तो कांस्टेंट है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो स्लोप टेम्परेचर टाइम का ग्राफ का कम होता जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वाले ग्राफ में सेटिस्फाई हो रही हैं. ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे करते करते स्लोप कम होता जा रहा है, फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू पे चला जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ऑल्दो इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी मैंने तुम्हें दिया कि थ्योरेटिकली अपन कैसे सोचेंगे कि इस टाइप का ग्राफ आएगा. और वैसे ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाते हैं. तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ओवर हियर. दैट्स इट, थैंक यू.